Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus from Salem Classes. So, students, today we are going to discuss about a letter to God. Already we have discussed the first part, and if you want to see the separate English video and Hindi video, you can go to my playlist. It is only for page reading and translating. But I have already three video. Okay, so one is a summary and another is a character sketch that is in English language, and there is another summary video and a total analyzing video of English. So that is in English language, you can see them, and this is only translating Hindi and English mixed. I will read this and I will translate it. So this is second part, and altogether 5 video lecture will be there for a particular chapter, a letter to God. So let's begin. So what we have discussed, we have discussed the hailstone that ruined Lencho's crop, and now he began to fill with sorrow, and he was saying that how they will manage this year. So that night was really very sorrowful night, and all his work spoiled, and he was thinking that who will help to them, and he was thinking that so all the hope will be dashed. Okay, so they will hungry, they will die with hungry. सो ये मन में सोच रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे क्या होगा, बट एकदम से क्या होता है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन ये अकेले रहने वाले मकान वाला जो मन में सोचता है, उसके हृदय में एक थोड़ा सा उम्मीद जगता है कि डेफिनेटली क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक आशा और उम्मीद जो है वह ईश्वर से किया जा सकता है. अब ईश्वर ही हेल्प कर सकता है, गॉड ही हेल्प कर सकता है, उसके साथ साथ और कोई नहीं कर सकता. तो उसका दिल में से एक आवाज़ निकलता है, डोंट बी सो अपसेट इवन तो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो उनका दिल में एक आवाज़ आता है कि आपको ज़्यादा अपसेट होने का ज़रूर नहीं है, यद्यपि सब कुछ आपका नष्ट हो गया है, लेकिन इस बात को याद रखें कि भूख से किसी का मृत्यु नहीं होगा. दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल्दो द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even that is deep in one's conscience. तो उसी रात में लिंचो के अंदर सिर्फ एक ही आशा और एक ही उम्मीद जगा हुआ था कि ईश्वर ही क्या कर सकता है, उसे हेल्प कर सकता है, बाकी भूख के कारण तो मृत्यु नहीं होगी. लिंचो was an ox of a man working like an animal in the field. एक ऑक्स की तरह लिंचो फील्ड में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत लिखना आता था. कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा लिखना आता था. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करता है, लिखता है, एक लेटर लिखता है. लिखने के बाद वो शहर में जाकर उसको मेल कर देता है. उसमें सिर्फ ये एड्रेस लिखा है, letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. तो इसमें वो लिखता है कि
प्रभु अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार और मैं हम सभी क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, जो hailstorm के द्वारा जो मेरा फसल ख़त्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, अगर आप मुझे 100 रुपीज़ देंगे तो मेरा भूख भी मिट जाएगा और साथ ही साथ नए बीज ला करके मैं अपने खेत में वो बो भी दूंगा। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town and the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो इस प्रकार एक चिट्ठी लिखते हैं और इन्वॉल्व में उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद चारों ओर उसको बंद कर देते हैं। फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, एक स्टैम्प लेते हैं और उसको स्टैम्प भी कर देते हैं। उसके बाद उसमें टू गॉड ऐसा एक एड्रेस लिखा होता है और उसी लेटर को मेल बॉक्स पर डाल देते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss, laughing hardly, and showed him the letter to God। जैसे कि एक पोस्टमैन था, वो लेटर को निकालता है और बिल्कुल हंसते हुए अपने बॉस को दिखाता है, देखो इसमें क्या लिखा है, लेटर टू गॉड लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। एक पोस्टमैन होने के नाते तो इतने लंबे समय तक उसने यहाँ पे काम किया है, लेकिन इस प्रकार का एड्रेस उसे किसी को पता नहीं है। द पोस्ट मास्टर ए फैट एम्बेबल fellow as also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote the letter, who wrote this letter, starting off a correspondence with God। तो शुरुआत में जैसे सुनता है पोस्ट मास्टर तो थोड़ा मुस्कुरा देता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। बाद में वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होकर के मन में ये सोचने लगता है कि वाकई माननी पड़े कि इस व्यक्ति का विश्वास कैसा है जो कि ईश्वर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। सो इन ऑर्डर not to shake the righteous faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। अब ज़्यादा कुछ ना करके पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि इस चिट्ठी का जो उत्तर कैसे दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो इस प्रकार से पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे निकालता है, फिर अपने जो दोस्त है उन सभी में से कुछ पैसा इकट्ठा करता है और इस प्रकार से वो उसको हेल्प करने के लिए चाहता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, ये मुश्किल था 100 पैसों को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से भी थोड़ा ज़्यादा ही वो उसको सेंड करने के लिए सामर्थ था। ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेन ओनली ए सिंगल वर्ड as ए सिग्नेचर गॉड। तो यहाँ पे एड्रेस के हिसाब से वो लिंचो का एड्रेस पता था, लेकिन फ्रॉम के एड्रेस में बस एक गॉड का सिग्नेचर वहाँ पे लगाया हुआ और जो पैसा था उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसी बॉक्स में इस इन्वॉल्व में उन्होंने डाल दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल
टू आस्क इफ देर वाज ए लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे जो है लिंचो आ जाता है और पूछता है कि उनके लिए कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो पोस्टमैन वहाँ पे थे, पोस्टमैन ही उस लेटर को क्या कर रहे थे, दे रहे थे किसको, लेंचो को, उसमें जो पैसे उन्होंने रखे थे। और पोस्टमास्टर अंदर से रह कर के ही उसके जो अच्छे कार्य उन्होंने जो किया है उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। लिंचो शोड नॉट द सिंगल सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो लेंचो को तो सरप्राइज हुआ नहीं, क्योंकि उसको बिल्कुल विश्वास था कि ईश्वर जो है पैसा उसको भेजेगा, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को काउंट करता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lincho what he had requested। ईश्वर तो कभी गलती नहीं कर सकता है और लिंचो ने जो रिक्वेस्ट किया उसको भी ठुकरा नहीं सकता है। तो फिर आखिरकार बात क्या है। Immediately लिंचो went up to window to ask for paper and ink। फिर उसके बाद वो पेपर और इंक क्या करता है, मांगता है विंडो में जा कर के। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by effort he had to make to express his idea। फिर उसके बाद वो जो सामान्य लोग पब्लिक जहाँ पर लिखती है ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं, बैठ करके वो सारा लिख लेते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then fixed to the envelope with a blow of his first। फिर उसके बाद उसी लेटर जो लिखे हुए होते हैं उसको इन्वॉल्व में पैक कर देते हैं, स्टैम्प लगा लेते हैं। उसके बाद उस लेटर में क्या लिखा था, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। फिर उसके बाद उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। तो चिट्ठी में ये लिखा था, मैंने जितना भी कहा था लेकिन मेरे पास पहुंचा केवल 70 पैसे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो बाकी के बच गए, मतलब और 30 पैसे जो बच गए वो भी जल्दी मेरे पास भेजो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ कॉक्स लेंचो। फिर उसमें ये लिखा था कि लेकिन अब की बार आप जो पैसे भेजेंगे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉइज़ जो है ये बहुत ही क्रॉक्स है। यानी क्या कह सकते हैं, हो सकता है उनको ऐसा लगा कि पोस्टमैन लोग जो है बाकी के 30 रुपये खा गए। विश्वास तो उसका बहुत मजबूत था, लेकिन उसे क्या पता था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही कंट्रीब्यूट करके ये पैसा उनको भेजा था। तो इसी को कहते हैं सिंपल बिलीव। ओके, थैंक यू, may God bless you, have a good day।